Hello. Malik, good morning. Hopefully everybody is doing good. And आशा करता हूँ कि आप तोड़ करेंगे मालिक. तो भारत माता की तोड़ मालिक. So basically, two things we have already covered with respect to two things we have already covered with respect to your chapter 4th. One was product life cycle and one was the experience curve. In product life cycle, we have discussed 4 points: intro phase, growth phase, maturity phase, and decline phase. From experience curve point of view, we have discussed as and when experience you grow, okay, as and when you get the experience, automatically your cost per unit will be reduced. And we have discussed the 4 factors which are there for experience curve. One was learning effect, which was very important. The second was economies of scale, where mass production can be done with volume can be, once volume increase, cost per unit can decrease. The third concept was product redefinition or product redesign, and fourth was technology innovation. These were the concepts we have discussed with respect to experience curve. After that, we have started with your chapter 4th, where we have started with stability. One of the question which I got commonly yesterday, just let me discuss on that, and later on I can start with the content of stability. First of all, if you remember, okay, help me out, if my product is on what stage, I can use the stability. If my product life cycle is on what stage, I will use stability. Maturity. Everybody agree? ठीक है. If environment is static, relatively static, I'm not saying completely static, but relatively stable, can I use the stability also? Now please do understand, these both concepts are different. When I was explaining this thing yesterday, I was on the same point. When I'm saying if my product is on maturity stage and environment is relatively stable, that time I will use stability. This is not the concept. There are situations. Example, suppose there is my product is on growth phase. Which phase? Growth phase. What is the growth phase? What is the growth phase? Where the growth is rapidly done. I hope this point is there. I hope you are clear with this point. But during some time, the environment is relatively stable. Example, it is a growth phase only. Growth phase only, but environment is relatively stable. During that time also, I can use stability. यानी example, right now, if Apple has innovated the product of Apple, कौन सा version चल रहा है? 16. अपने पास तो 15 है, पर 16 चल रहा है. 16 is going on. Do you think they are bringing again innovation, new concept? Okay, पर वो कब लाएंगे? Immediately लाएंगे or after 1 year? Why after 1 year? Why not in 3 months? नहीं, stability is second issue. My question is, why they are not bringing in 3 months only? Why Apple? आपको लगता है Apple does not have R&D so quickly also? They can have. They can prefer that one. They can invest in that one. Why not in 3 months? Take advantage of whatever we have invested. That cannot be the only ground. That can be a ground, but that cannot be only ground. उनके पुराने प्रोडक्ट आउटडेट होंगे. तो मेरे को बताओ, आज के डेट में एप्पल 3G या 4G 5 ये जो भी वर्जन है, एनीबडी परचेजिंग? नहीं. पर कौन सा परचेज कर सकते हैं? 16, 15, 14, 13, 12 और 11, समथिंग लाइक दैट. उसके पहले वाला तो वो आउटडेट ही करने हैं ना. एनीथिंग विल बी आउटडेटेड once upon a time. But what is the logic behind why they are not investing in next 3 months? Environment is relatively stable. Environment is relatively stable. Yani people are using that product and getting adapted with that technology, and they require how much time? 1 year. 1 year is a relatively stable environment. And for that purpose, they are focusing on innovation. They are focusing on growth. But many times they can use which strategy? Stability. So you need to understand stability strategy use करने का कब. That's if I discuss with you, there can be situations. First situation क्या बोला मैंने? What we have discussed in product life cycle. If my product is on which stage? Maturity. Now think logically, practically सोचिए. If my product is on maturity stage, okay, anyway there will be no customer only. No new customer actually. No new customer. So in that case, I'll be using stability only. I just need to preserve my market share. I don't let that my market share go with competitor. But technically, if environment is relatively stable, no new technology is coming, no new innovation is coming, consumer preferences are not changing, consumers जो choices है, they are remaining stable. Now tell me, why should I go for innovation then? Which approach is better for me? Stability. So you need to understand. Acha, one more example, if you remember yesterday, we have discussed like this. If I did the expansion, example, I acquire one company, I acquire another company, I acquire another company, I acquire another company, I acquire another company. Now multiple companies I acquire. Now let me give a time to consolidate this thing
and enjoy the benefit, then I can go again on acquisition, na? So in that case, is there if I'm acquiring such a large company at this large scale, do you think my product is on maturity stage? No. Product maturity is one of the ground. It is not complete ground. Listen carefully. What I want to convey you is very clearly. Product life cycle का अगर maturity stage है, stability approach is fair enough. But it doesn't make a difference if I'm on a growth stage, I will not use stability. Okay, stability strategy is for some period. Example, okay, Apple 16 निकाला, innovation किया, marketing किया, okay, बताया भाई, we did product development, we also did product development. I do think you are aware of product development. This is called product development. I am developing a product now, and my market is almost same. They are selling in India, China, US, and everywhere. The product is same, product is new, but market is same. I hope this concept is very clear. Now think logically, after that 3 months down the line, they are not doing anything. Okay, so which approach right now they are using? Stability. Okay, why stability they are using? Because recently they have brought innovation. Okay, so let get stable to get the benefits of this innovation. After 4 or 5 months down the line, I am telling you what will happen. 4 or 5 months down the line, by February or March, the cost of iPhone 15 will be dramatically reduced. Okay, cost of which one? From 15, not 16. 15 they will dramatically reduce because they will be focusing on, okay, जो भी उनका product manufacturing हो रहेगा for iPhone 15, they want to sell it out. This will be the target in February, March, April, May, June, and after July they will be saying now they are bringing 17. Okay, so this is what you need to understand. तो 2-3 महीना ये लोग क्या करते हैं? Which approach is there? Stability. Okay, आपने देखा होगा, I hope everybody is aware about this. Samsung भी ऐसे ही करता है, Apple भी ऐसे ही करता है. Think logically, when they launched the Apple iPhone 16, on that day, don't you think everywhere the advertise, marketing, influencer, okay, हर एक influencer आएगा, हमने नया product निकाला, oh my god, the feel, कुछ है नहीं, माँ कसम camera is same. But don't you think influencer will be the technical way? चलिए शुरू करते हैं. I hope you have seen this. And if you don't want to see also, then also the feed will come on your screen. Because that is how that concept works. That's how the technology algorithm works. Why not nowadays it is coming like this? Why not no influencer is coming, oh, why Apple iPhone 16? Few of the influencers will come like this, that last 2 months I am using iPhone 16, what was the feedback? But not everyone, why? Okay, so मेरे को बताओ, on the day when it was launched, do you think influencers are very curious about iPhone 16 or Apple has a product or marketed that one? Apple, अरे free में Apple iPhone बेचते हो? They give that on pre-launch base. Why? They want to market to the reach to the customer. Earlier the marketing was newspaper, TV channels, radio. Now the things that TV channel and radio is very outdated. Radio can be still going on, but which product we need to sell on radio, that is more important. I hope you would be listening a radio. कभी सुने हो? कभी तो सुने होंगे, पर अभी recently कभी सुनते हो? अगर आप पुणे का रेडियो सुनोगे, आधे टाइम आएगा, इधर बिल्डिंग बन रही है, उधर बिल्डिंग बन रही है. Infrastructure ad, because they are aware who are the buyers, and accordingly you need to pitch the ad. So tell me, in the month of September, October, Apple was in which strategy? Which strategy? When they launched the new product, which strategy? Growth. Growth में which strategy? If you remember 4 point we discussed. Okay, market development, product development, market penetration, and diversification. They were in which strategy? Product development. I hope you are getting the point. And suppose, okay, they are not selling the product in Sri Lanka. I am just giving an example. Suppose they are not selling the product in. Now they are starting to sell the same product in Sri Lanka, the new iPhone 16. Which strategy goes on? Diversification. This is called which one? Diversification. I hope you are getting the point. Because naya product, naya market. But iPhone 15 they are selling in Sri Lanka now. First time. This is called market development. So this all strategy comes into picture. Now think logically. Now in month of December, which strategy is used by Apple? Apple for iPhone, for iPhone. Not for any other thing. For iPhone, which strategy they are using right now? Are they focusing on market penetration? No. आप बताओ ad किधर दिख रही है? आपको किधर बार-बार ad दिख रही है? iPhone 16 परचेज करिए. Fair enough. अगर आप देखोगे तो Chroma or Vijay Sales, somebody they will be giving ad for promoting them, but it is not Apple which is giving an ad. तो अभी एप्पल कौन सा स्ट्रेटजी यूज कर रहा है? स्टेबिलिटी. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. अच्छा, अभी देखो रिसेंटली महिंद्रा ने न्यू कार लॉन्च किया था.
आप मेरे को बताओ, हर एक जन के फीड पे देयर वाज सम इन्फ्लुएंसर हु वाज प्रमोटिंग दैट कार. व्हाई? हु वाज डूइंग दैट मार्केटिंग? महिंद्रा itself. It is not, अरे ऐसा मत सोचिए सर इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छे हैं भाई, इन्फ्लुएंसर वहां कसम ऑटोमेटिकली दे आर गेटिंग, ओह माय गॉड दिस न्यू आई नीड टू डू. उन्होंने इनिशियली वो इन्वेस्ट किया एंड नाउअडेज दे आर कॉल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स, द प्रोडक्ट डेवलपर्स, एंड दैट्स व्हाट हैपन. अब ये मैं आपको बता रहा हूं, 15 20 डेज 25 डेज ये ईयर एंड महिंद्रा का वो जो कॉन्सेप्ट है वो कम हो जाएगा. ओके, देन दैट विल बी मोर ऑन सेल्स रेदर देन डूइंग एनी अदर थिंग्स. तो भाई साहब आपने ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी इज नॉट ओनली वन टाइम अप्रोच विच इज यूज्ड ओनली व्हेन द प्रोडक्ट एज विच स्टेज मैच्योर्ड. दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल. ओके, so let me give once again that example because ये क्वेश्चन मेरे को कल 3-4 बार मिला. आई वाज थोड़ा सा कंफ्यूज. मैं बोला अरे यार आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है पहले, तो पहले क्लियर करिए. ओके, मेरा पॉइंट ये है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज में आई विल बी यूज स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी, बट दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड. दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड. सेकेंड, if I am into any of the phase, I am into definitely intro phase में नहीं रहेगा, intro phase में नहीं रहेगा. लेकिन if I am in growth phase or something other than phase, my environment is relatively stable, my environment is relatively static. Okay, help me out, which strategy I should use, stability or expansion? अच्छा मेरे को बताओ, अगर इसमें expansion भी यूज किया तो consumer preference change ही नहीं हो रहा ना. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. अच्छा मेरे को बताओ, ओके एक अभी भी अपन को ये ऑलरेडी एग्जॉस्टेड लग रहा है. इफ यू थिंक अबाउट इट दैट इन एवरी ईयर एप्पल इज ब्रिंगिंग न्यू इनोवेशन विच इज एक्चुअली नॉट एन इनोवेशन. इमेजिन एप्पल ब्रिंगिंग दिस न्यू इनोवेशन एवरी 5 months. ओके, कंज्यूमर विल नॉट प्रिफर. कंज्यूमर बोलेगा भाई यार 1.5 लाख अभी एक साल में डाल रहा हूं, इट्स ओके फेयर इनफ. बट अगर वो 3-3 महीने में हो गया तो एप्पल तो बोलेगा ठीक है मेरे लिए तो फायदा ही है, 3-3 महीने में आ रहा है बिकॉज R&D इज देयर. But at the end of the day, it will not change. Market is stable now. Because why market is stable? Consumer want to learn the new features. They need to get adapted with new features. And once they get bored with the new features, then more new features will be required. And this time gap is how much? 1 year. And this is not decided by you or me. It is decided by the manufacturer, Apple. The Apple thought कि भाई अपन ऐसा करेंगे. Earlier, okay, I'm telling you earlier, I'm discussing 20 years back, any innovation, technology innovation, I'm telling you, technology, phone innovation or something, it would take 3 years, 4 years down the line. Acha, everybody, either you are using Android or using Apple, Mac, okay, Mac OS, doesn't make a difference. मेरे को बताओ, how much frequently you get a, okay, OS का update? And don't you think almost every month you are getting OS update? Connect the phone to your Wi-Fi, keep your battery at the charger point, and update will get automatically installed at night. Many times you are not aware only, your update भी हो गया. Okay, don't you think app also get updated like this only? Okay, this was not case 20 years back. Why? Because what was static 20 years back? Environment. Now environment is dynamic. We are using the technology. People have adapted the technology. People are very curious to the technology. The second reason why you should use stability. When you should use stability. Second reason, when environment is static. But static जब बोलेंगे ना तो relatively. I hope you are getting the word relatively. Relatively मतलब every time people are happy with technology, but sometime people get stable. So that time market is relatively stable, static or stable. I hope clear, Malik? पक्का? Third scenario, help me out. Okay, pride किसमें? Pride. Expansion. But employee will be comfortable with? Now think, okay, I want to expand, but my employees are the key personnel. My employees are key personnel because of which my product is going on. The product innovation is going on. My R&D team is superb. Because of that, I am getting the good innovation. But the problem is, if I go with expansion, the person is saying, I will leave the organization. The person is saying, I will leave the organization. भाई मैं नहीं change होने वाला. Nor I want to diversify my portfolio. Example, R&D head would be there. He's thinking everything should be with me only. But if you go with expansion and you have one more person, it will be diversifying him. I don't want that. Who is telling this? Not CEO. Not CEO. This is told by employee. But employee is key personnel. The employee is who? Now tell me, in this case, what you will prefer? Will you go for expansion or stability? Okay, but my friends tell me, okay, whenever I am discussing stability, is stability for lifelong or only for a period? हाँ, जब तक मैं उसको adapt नहीं करता. Example, my key personnel. Suppose he is my key personnel. He is saying, sir, if you go with expansion, Tata,
बाय बाय, आई एम गोइंग. ओके, तो फिर मेरे को बताओ, विल आई गो फॉर एक्सपेंशन और स्टेबिलिटी? क्या लाइफ लॉन्ग? ओके, आई विल सर्च फॉर द अल्टरनेट फॉर हिम. I hope you are getting the point. In the next 5 months, I am getting alternate. Okay, इससे बात किया, इसको इसके साथ लगाया. अभी तक मैं इसको बताया भी नहीं. I am going for expansion. I am still what? Stable. But learning. Okay, he is now fair enough. Okay, I am going for expansion. I can't stay on stability every time. I can't stay on stability. Stability is for a period. But how much is the period will be decided by whom? Managers. The third reason why you should prefer stability. Why you should prefer stability? Oh my God. Acha, which question I am discussing with you right now? Why stability? Which question I am discussing with you? The first reason why stability, you are on the life cycle of maturity. You should prefer stability. Second, okay, environment is okay, then you should prefer stability. Please understand, this both are and or. Yeah, and है. Yeah, and है. 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, मां कसम मर जाऊंगा मैं जहर खा के. Okay, this is and or. One of the situation is life cycle maturity. One of the situation is environment stable. Third situation, I am feeling pride वाला नहीं, उल्टा करो. Employees are comfortable with and I don't want to replace employees. मेरे को अभी employees के साथ छेड़छाड़ करनी नहीं है. I hope झेपा मालिक. I hope getting the point. पक्का. देखो, अगर आप बोल रहे होंगे सर आपने तो कल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझाया, तब आपने बोला प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की मैच्योरिटी फेज आएगी तो ही स्टेबिलिटी होगा. ओके विपुल भाई 2 मिनट. ओके, तो ही स्टेबिलिटी होगा. अगर आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है, ओके, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ दिस थॉट प्रोसेस दैट सर आपने तो कल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझाया था, अरे दैट वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, धीरे धीरे यू नीड टू अडैप्ट ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन योर सिस्टम एंड देन द इंटीग्रेशन विल हैपन. So yesterday or day before yesterday, you are aware, product life cycle stage hai, and that is maturity stage. That time stability is required. But today the answer should be modified. That is not the only one ground when stability is required. I gave the best example. Apple अभी क्या यूज कर रहा है? Stability. अभी ज्यादा हेडेक नहीं कर रहा है, जितना मार्केट शेयर उसको प्रिजर्व करके रख रहा है, एंड वो मॉनिटर कर रहा है. To whom? Samsung. अच्छा, क्या आर दे फोकसिंग ऑन Vivo, Oppo? नहीं, but they are interested in सैमसंग में भी कौन से? गैलेक्सी वर्जन, फोल्ड वर्जन. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. तो 3 आंसर मेरे को फटाफट दीजिए. वाई स्टेबिलिटी? आंसर रिमेंबर. फर्स्ट मैच्योरिटी, सेकंड एनवायरमेंट स्टेबल, थर्ड एम्प्लॉइज कंफर्टेबल. एवरीबॉडी क्लियर? फोर्थ, if you remember one of the example which I told, can I expand it now? Answer is yes. I have finance, I have everything. Okay, I am going to expand in Hyderabad. If you remember, but after expansion, I am coming to know the subject will be removed. Okay, so tell me, the expansion is what? Opportunity or threat? Threat. Okay, if you are looking at expansion, but it is looking that expansion is threat. Okay, better option. Don't go with expansion. Then what we should do? Stable. Let environment change. अच्छा, आज एनवायरमेंट में थ्रेट है रे. आज एनवायरमेंट में क्या है? अबे यार, इसका मतलब यार जिंदगी भर थ्रेट रहेगा क्या? ओवर ए पीरियड इट विल कन्वर्ट इनटू अपॉर्चुनिटी. तो राइट नाउ जब तक थ्रेट है तब तक क्या करने का? शांत बैठने का. जब तक कोविड था पब्लिक क्या कर रही थी? देखो, इनिशियली व्हेन कोविड टुक प्लेस इन 2020, every company was in havoc because nobody was aware what to do now. If you remember, in 2020 there was the biggest blunder for everyone, but in 2021 everybody adapted. Everybody, when I am saying everybody, मतलब I am discussing from company point of view. I am not discussing from individual point of view. सबसे बड़ा ब्लंडर तो 2021 में ही हुआ है. मैक्सिमम डेथ जो हुई है वो 2021 में ही हुई है. बट आई एम डिस्कसिंग फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू? कंपनी अडेप्टेड कि भाई लास्ट ईयर ऐसा था, अगले साल ऐसा है. अब मेरे को बताओ, 2021 में भी चेंज हुआ क्या एनवायरमेंट में? कोविड वैसे ही था ना. तो फिर कंपनी ने क्या किया? तब क्या किया? चुपचाप क्या करने का? चल लो. वन पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब कोविड चला जाएगा एंड देन विल गेट द अपॉर्चुनिटी. तो थिंक लॉजिकली. तो फोर्थ पॉइंट, व्हेन स्टेबिलिटी इज प्रीफर्ड, व्हेन अपॉर्चुनिटी इज ए थ्रेट, अपॉर्चुनिटी इज ए. एंड फिफ्थ रीजन, बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एक्वायर किया, यानी आफ्टर रिसेंट एक्सपांशन आई शुड कंसोलिडेट माई सेल्फ. आफ्टर रिसेंट एक्सपांशन आई शुड. बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस, एप्पल. ओके, राइट नाउ एक्सपांशन हैव बीन डन बाय एप्पल ना. So let consolidate. Let's focus on stability so that I can reap the benefits of expansion. That's the only way by which stability can be discussed. This 5 question concept we are discussing, what is the ground behind it? Any case study may have one of the point in this. You need to apply that logic in scenario analysis.
case study will there, and case study will be saying that product has been recently innovated. They have did the innovation. They are having total R&D, and they are doing super innovation. Recently they launched the product which is very newly developed, but market is relatively stable now. There is no changes in consumer preferences. Explain or suggest what strategy corporate level should be applied here. Now अगर आप बोलोगे यार innovation है, R&D है, let's go for expansion. अरे पर consumer preference ही नहीं change हो रहा ना. Suppose you bring a new product, okay, but nobody will purchase. What is the use of bringing new product? तो कब लाना चाहिए नया प्रोडक्ट? जब एनवायरमेंट डायनेमिक. तो आई होप यू अंडरस्टूड एनवायरमेंट डायनेमिक मतलब क्या? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट डायनेमिक? कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर चॉइसेस. नाउ दिस वन चेंजेस अगेन एंड अगेन. तो एनवायरमेंट क्या बन जाता है? डायनामिक. कंज्यूमर बोलता है नहीं भाई जो चल रहा है मस्त स्टेबल, बट दिस इज रिलेटिवली स्टेबल. कंज्यूमर प्रेफरेंस पूरे जिंदगी ऐसे ही नहीं रहेगा. यू विल नॉट बी हैविंग ए चॉइस ऑफ सेम शर्ट पैंट्स, यू विल नॉट बी हैविंग ए चॉइस ऑफ सेम कलर्स. सेम कलर्स आप देखो, आपके लाइफ में भी देखो, जब आपको कुछ चीजें बहुत पसंद आती है ना, ओके, पूरी जिंदगी वैसे नहीं करते. वो दैट इज ए फेज ऑफ पर्टिकुलर लाइफ, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड यू वेयर दैट कलर और यू वेयर दैट पर्टिकुलर थिंग्स, ओके, वेरी फ्रीक्वेंटली. बट आफ्टर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आदमी बोर होता है. इंसान का जन्म ही बोर होने के लिए हुआ है, क्योंकि अनलेस अंटिल यू डोंट चेंज योर माइंडसेट, नो न्यू कंपनी विल बी सक्सेसफुल. यही तो प्रॉब्लम थी, इसलिए पुराने जमाने में लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती थी, क्योंकि पुराने जमाने में 30-30 साल एक ही कॉन्सेप्ट चलता था. राइट नाउ, ओके, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ 30 years. Okay, there is a concept, and that problem is technology, because of, again, you are on social media, you are on reel, you are on video, you are watching reel video of 30 seconds, 1 minute. Check it out. If you are watching one video, okay, which is of 15 minutes, within a minute you will get bored. अरे यार नहीं जम रहा है, अरे change. It is not because you are not liking it. It is because that is becoming a human tendency because of environment. एंड ये खाली मैं आपके साथ नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे साथ भी होता है. आपकी लाइफ में कुछ हो ना हो, मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले हाथ में फोन आता है. ओके, बाकी तुम्हारा बाकी जिंदगी का गया तेल ने. मॉर्निंग में रात को किसने मैसेज किया, क्या किया, एक बार इंस्टाग्राम, एक बार व्हाट्सएप, ओके, ये दोनों चेक कर लिया है. फेसबुक किया है, लिंक्डइन, तुम लोग किस पे होंगे. तो मेरी लाइफ में मैं ज्यादा सोशल मीडिया पे रहता नहीं हूं, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे रहता हूं. वो भी फोटो डालने में मजा आता है. ओके सर, बिकॉज दैट इज समथिंग, मतलब यू नीड टू स्टे पॉइंट. ओके, नॉट फ्रॉम क्लास पॉइंट ऑफ व्यू, बट एटलीस्ट कुछ तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने के लिए वो वाला पॉइंट है. तो आई एम नॉट एकदम सोशल मीडिया का फ्रीक, मतलब फ्रीक, वो ऐसा फ्रीक नहीं हो कि भाई यार कुछ भी आया मां कसम, ओके, दिस इज माई लाइफ, ऐसा नहीं रहेगा. लेकिन to the extent I am there, because of that also it does have an impact in my kids and children's, and that happen. How sir? Because कभी कभी वो आदि कुछ बोलने आता है, मेरे से बात करने आता है, I am on which media? Social media. And फिर आदि बोलता है बस this is actually what happens, और फिर ऑटोमेटिकली आएगा this is nothing but consumer preference change. आपके इसमें चेंजेस आएगा. And I hope had you heard the word metaverse or something like that? अब इमेजिन करो, अभी आप बोलोगे मेटावर्स, आपने देखा होगा मेटावर्स खरीदने के लिए यू रिक्वायर मतलब करोड़ ऑफ रुपीस. आप बोले मेटावर्स में अगर जमीन खरीदनी है, यू कैन परचेज ए लैंड, बट यू विल रिक्वायर करोड़ ऑफ रुपीस. सर इधर मेरे को इधर की जमीन समझ में आ रही है, बिकॉज देयर इज लैंड विच इज विजिबल. मेटावर्स, विच वर्स? ओके, दैट्स अ टेक्नोलॉजी. You may not be adapting it, but your future generation will be always in metaverse. Why? Because of metaverse? Because we are already in this universe where we are focusing on technology. Future will be completely on technology. अच्छा, आपने एक एप्पल का एक नया इनोवेशन देखा था जिसमें वो आई ग्लास पहनते हैं, दे आर वेयरिंग द ग्लास एंड एनीथिंग कैन बी डन विथ आई, मतलब पूरा स्क्रीन पे. उसका नाम भूल गया मैं. Vision Pro, something like that. Okay, they're wearing a glass and it's costing something around 2 to 3 lakhs. 2 से 3 लाख का वो प्रोडक्ट है. Okay, that product is called for Apple which strategy? It's an expansion. Expansion में कौन सी strategy? Is it market penetration? Oh, पहली बार लाया है. Product development? नहीं, it's a diversification. तो diversification. I hope you are getting the point. तो ये आपको समझना पड़ेगा डाइवर्सिफिकेशन है. तो आप मेरे को बताओ एप्पल कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहा है? स्टेबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन या प्रोडक्ट डेवलपमेंट? कॉम्बिनेशन. व्हाई दे आर यूजिंग कॉम्बिनेशन? बिकॉज दे आर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. दे आर विच पोर्टफोलियो? डाइवर्सिफाइड. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. तो पहले 5 पॉइंट रट के बताओ, फटाफट रट के मतलब याद करके. ओके, देन व्हेन आई एम सेइंग रटोफाई, जस्ट रिमेंबर यू आर रिमेंबरिंग विद कीवर्ड्स. रिवाइज विद कीवर्ड्स. स्टेटमेंट अपन लिखेंगे बट रिवाइज विद कीवर्ड्स. तो 5 पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट, ओके, व्हेन आई शुड यूज स्टेबिलिटी. प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल,
मैच्योरिटी, एनवायरमेंट, ओके, रिलेटिवली स्टेबल या रिलेटिवली स्टैटिक, विच एवर वर्ड इज प्रिफर्ड यू प्रिफर्ड. थर्ड, ये ऐसा उल्टा, रिवर्स अबाउट दिस, एम्प्लॉइज आर कंफर्टेबल, ये याद रखने का. फोर्थ पॉइंट, ओके, अपॉर्चुनिटी, सॉरी, expansion is threat. And fifth point, I did expansion and right now I need to consolidate. तो consolidate करने के लिए relatively stable. I hope everybody clear? Characteristics of stability. Listen carefully. 5 पॉइंट पक्का सबको ध्यान में रहेगा? ठीक है. What are the characteristics of stability? Listen carefully. सारे के सारे इधर. First point, okay, help me out. Which product? New product or same product? Stability के लिए which product? Same product or new product? Same product. Which market? The first point, it is working in same product, same market. Second, I explained you yesterday how they will increase the profits. How they will increase the profits. Okay, I told you it is not by cost per unit. वो context है, पर cost per unit कैसे होगा? Learning, and learning effect will increase efficiency. So they are focusing on what? They are focusing on economies of scale or functional efficiency. Functional efficiency. Example: marketing team, production team. They will focus on function and make them efficient. तो सेकंड पॉइंट याद रखना, मेक श्योर, आपको कल मैंने क्लियरली समझाया, वॉल्यूम नेवर इंक्रीजेस, वॉल्यूम विल इंक्रीज बट विथ मार्जिनल पॉइंट. तो सेकंड पॉइंट क्लियर है. तो सेकंड पॉइंट, दे आर फोकसिंग ऑन विच एफिशिएंसी, वर्ड, दे आर फोकसिंग ऑन विच एफिशिएंसी, फंक्शनल एफिशिएंसी. दे आर फोकसिंग ऑन विच एफिशिएंसी. ऑनलाइन पढ़ लोग, आई होप ये याद आ रहा है मालिक. ओके, फर्स्ट पॉइंट, वंस अगेन, सेम बिजनेस और सेम प्रोडक्ट और बिजनेस और डिफरेंट बिजनेस, सेम प्रोडक्ट और सेम बिजनेस. सेकंड, सेम मार्केट और डिफरेंट मार्केट. First point, remember this. Second point, they are focusing on which efficiency? Functional. Functional means understood, na? Production, HR, whatever. There will be functional efficiency. Third, okay, help me out. Fresh investment is more or less? Fresh investment is more or less? They require fresh investment? Yes, but only relatively कम, एकदम कम. किसके relatively में कम है? Expansion. चौथा point, risk is more or less? Less. Risk is less, ना? अच्छा, expansion और stability, where risk is more? एक्सपांशन. बहुत, मैं आपको बता रहा हूं, एक्सपांशन इज वेरी, मतलब इट्स लाइक करिश्मा, बट एट द एंड ऑफ द डे इट डज हैव ए हाईएस्ट रिस्क. अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया, यू विल बी, मतलब यू विल बी एट टॉप ऑफ द मार्केट, बट इफ प्रोडक्ट इज नॉट सक्सेसफुल और नॉट एबल टू कंपीट, सिप लाइन, ओके, यू विल बी नोवेयर. ओके, तो चौथा पॉइंट, रिस्क इज मोर और रिस्क इज लेस? लेस. आई एम जस्ट, देखो, कभी रिस्क जीरो मत बोलना, कम रहेगा या तो ज्यादा रहेगा, तो क्या है? कम है. पर ये सब किसके कंपैरिजन में चल रहा है? आई होप दिमाग में बैठ रहा है क्या? तो फोर्थ पॉइंट, रिस्क इज लेस. आई होप क्लियर. पांचवा पॉइंट इसी के लिंक में याद रखो, इट इज अप्रोच विच इज सेफ्टी अप्रोच. विच अप्रोच? सेफ्टी. तो रिस्क इज लो, देयरफॉर इट इज सेफ. तो सेफ्टी अप्रोच रहेगा. भारत माता की जय. झेपा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डज इट इन्वॉल्व रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस और नॉट? रीडेफिनेशन मींस, एम आई रिक्वायर्ड टू रीडिफाइन माय बिजनेस? नो. तो रीडेफिनेशन हैपेंस इन एक्सपेंशन, नॉट इन स्टेबिलिटी. तो रीडेफिनेशन इज नॉट देयर. वापस आते हैं 6 पॉइंट. क्या क्या पढ़े? पहला पॉइंट, सेम और सेम ऐसा याद रखो, सेम. व्हाट सेम? प्रोडक्ट और बिजनेस, सेम मार्केट. सेकंड, दे फोकस ऑन फंक्शनल एफिशिएंसी. थर्ड पॉइंट, ओके, यहां पर इन्वेस्टमेंट्स, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स, लेस. रिस्क इज मोर और लेस? लेस. अप्रोच इज सेफ्टी. ओके, डज दे रिक्वायर रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस और नॉट रिक्वायर्ड? नॉट रिक्वायर्ड. यहां पर रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस करके मतलब ही नहीं है ना. Even if you do R&D, what is the use of R&D in this case, huh, Malik? I hope you are getting the point, Malik. Okay, focus. So ultimately they will focus on what? They concentrate on the resources to improve. Okay, functional efficiency तो हो गया. Second point, for core competency. क्योंकि मेरा मार्केट कोई लेके नहीं जाना चाहिए ना. तो अगर मेरा मार्केट कोई लेके गया तो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी बढ़ जाएगी. तो आई नीड टू एंश्योर मेरी कोर कॉम्पिटेंसी वही ही रहे, चेंज ना हो. तो आई विल कॉन्सेंट्रेट माई रिसोर्सेज. आई विल to focus on core competency. To focus on core competency. I hope everybody clear. पक्का समझ में आ रहा है? तो ये अपन ने क्या डिस्कस किया? Characteristics of stability strategy. तो एक बार वापस रिपीट करिए. What are the characteristics of stability strategy? First, same market, same product. They focus on which efficiency? Functional efficiency. Third scenario, the investment is less. Okay, risk is, approach is safety. Risk के साथ safety याद रखो. Approach is safety. I hope clear. Next point, does this involve redefinition of business or not? No. They focus there, they concentrate their resources to improve core competency. And most important, is there a growth or not growth? हाँ, तो इसको बोलेंगे अपन modest growth. क्या बोलेंगे?
मॉडेस्ट ग्रोथ, MODEST, मॉडेस्ट ग्रोथ. आई होप क्लियर मालिक. तो स्टेबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पढ़ ली. वाई स्टेबिलिटी वी हैव लर्नड इट. ओके, तो व्हेनेवर अब क्वेश्चन है सर इसमें से क्या याद रखना है, तो ये क्वेश्चन में बोला जाएगा, क्वेश्चन विल बी आस्किंग व्हिच आंसर टू बी रिटर्न. इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग, रिमेंबर दिस पॉइंट क्लियरली. लाइफ में ये ध्यान रखना है, इन चैप्टर 4th एंड इन चैप्टर 3B, rarest to rarest chances will be there that you will be getting explain stability strategy, what are the characteristics. ऐसा नहीं होगा. They will be giving a question. ABC Limited is there on the product life cycle of maturity stage. They are developing their product, okay, but their innovation is not required because market acceptance is not there. Even the environment in which they are operating is relatively static, relatively static. There is no requirement of innovation in that market. Suggest which approach is suitable, which grand strategy is suitable, and explain what are the characteristics of such grand strategy. I hope समझ में आ रहा है मालिक? Everybody? नहीं समझा? Understood ना? तो this way क्वेश्चन आया, तो अब मेरे को बताओ सबसे पहले क्या लिखोगे? स्टेबिलिटी. सबसे पहले स्टेबिलिटी लिखनी पड़ेगी, और स्टेबिलिटी पे थोड़ा सा ज्ञान लिखना पड़ेगा. नॉट कंप्लीट ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान क्या होगा, आई विल एक्सप्लेन यू ऑन द स्क्रीन, बट थोड़ा सा ज्ञान लिखना पड़ेगा. एंड थोड़ा सा ज्ञान लिखने के बाद फिर अपने को क्या लिखना होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स. और द क्वेश्चन कैन कम द सेम क्वेश्चन, ABC Limited in the blah 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 blah. Explain what is a grand strategy here. Okay, dot. Explain what are the situations where such strategy can be used. Explain what are the situations when this such strategies can be used. So how many situations we have discussed? 5. याद आया मालिक? तो अपने को ऐसा लिखना पड़ेगा. ठीक है सर. आंसर के फॉर्मेट क्या रहेंगे? वैसे तो नेक्स्ट वीक में व्हेन वी गो विथ वॉल्यूम 2 आई विल डिस्कस ए फॉर्मेट दैट टाइम, बट प्रिसाइजली रिमेंबर द फॉर्मेट फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर सब्जेक्ट, लॉ के लिए और ऑडिट के लिए. ओके सर ये सब नोट करें. अरे नोट करेंगे ना, क्यों टेंशन ले रहा है, सारा लिखना है. ओके और एक चीज है, अगर किसी को ऐसा अप्रोच है भाई मेरे को रनिंग नोट्स बनाने साथ साथ में, तो आप बनाइए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है. एग्जाम्पल आप मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हो, कोई बोल रहा है भाई एग्जाम्पल यू आर फ्रॉम 7:30, इधर 7:15 बजे से ही आए होंगे, 7:15 से इधर हो आप. ओके सुबह चाय वाय पी होगी, फिर बाद में नाश्ता टूसा होगा, टूसा मतलब नाश्ता लिया होगा. आफ्टर नाश्ता ओके ऐसा बैठे एंड कंप्लीट डे इज ऑन दिस बेंच ओनली. एट द एंड ऑफ द डे यू आर डूइंग नथिंग. योर ब्रेन इज डूइंग एवरीथिंग. फिजिकली यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. टेक्निकली यू आर नॉट, बैठे तो है, देख ही तो रहे है. एंड फॉर एवरी मतलब आपको मैक्सिमम टाइम तो यस सर. ओके वर्चुअल वाला क्या होगा? वर्चुअल वाला विल बी इन मच कंफर्टेबल पोजीशन. ओके एग्जांपल वो अभी मैं देख रहा होगा, वो देख रहे हैं ठीक है स्टेबिलिटी स्टडी, फिर वो घूम पे आएगा, रूम में घूमेगा, स्टेबिलिटी हाँ, एनवायरमेंट स्टेबल. ओके यस हाँ, पप्पा अभी बाहर नहीं है, एनवायरमेंट स्टेबल. ओके तो द थिंग्स कैन बी देयर. ओके तो ये कंफर्ट है. तो ऐसा हो सकता है कोई बोले भैया सर ड्यूरिंग द डिस्कशन इट में हैपेंस, कभी कभी नींद भी आ जाती है, तो नींद का याद रखो. ओके नींद मत निकालो, झपकी निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. There is a big difference between that झपकी and नींद. झपकी मतलब fraction of minutes. You are going somewhere and you are coming back. But don't worry, sir. Concept छूट जाएगा ना. But I hope you understood from last 5 days. I am into repetitions frequently. तो एक ना एक टाइम पे तो वापस कॉन्सेप्ट आएगा ना. That is the main ground of my repetitions. तो कोई रिपीटेशन है और कोई बोलेगा सर मैं तो पूरा एक्टिव है, तो रिपीटेशन क्यों कर रहे हो? रट ले. तो both of them permutation combination बैठते हैं. तो you will be into particular point. तो अगर किसी को ऐसा लगता है नहीं साथ साथ में रनिंग नोट बनाइए, आपके इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है. वो आप एक नोटबुक रखिए, नोटबुक में लिखते जाइए. फेयर बुक में कुछ लिखना रहा वो मैं बताते रहूंगा जब लिखना है. तो फेयर बुक में आप सारा चीज नोट करोगे. इसको रिवाइज करने के लिए देयर आर 2 ऑप्शन. फर्स्ट आई एम ऑल्सो हाईलाइटिंग द कीवर्ड, एंड सेकंड ओके वंस आवर चैप्टर इज डन आई विल बी विथ यू रिकॉर्डिंग द रिवीजन लेक्चर ऑन चार्ट बुक. तो आपका चार्ट बुक रहेगा, उसमें रिवीजन रिकॉर्ड होगा. तो आपके हेड पॉइंट जो अपन रिवाइज कर रहे हैं ये सारे के सारे चार्ट बुक में आएंगे. आपका FM के चार्ट बुक में वो आ जाएगा. तो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट विल वर्क. तो डोंट वरी अबाउट द राइटिंग पोर्शन एंड अदर थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट अडेप्टिंग द सिचुएशन, स्टार्ट अडेप्टिंग द कंटेंट. तो आई होप अभी आपको स्टेबिलिटी में कितने क्वेश्चन है अपने पास? इन स्टेबिलिटी हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड? 2. व्हाट आर द 2 क्वेश्चंस? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाई स्टेबिलिटी. वंस अगेन एंड व्हाई स्टेबिलिटी, एंड देन आवर स्टेबिलिटी अप्रोच गेट्स ओवर. आई होप पंटर लोग क्लियर एवरीबडी. तो एक बार लास्ट टाइम फटाफट रिफ्रेश मार लेते हैं. ओके स्टेबिलिटी का पॉइंट. ओके आफ्टर दैट एक 2 पॉइंट को आप रिफ्रेश करिए, बताइए कल का कंटेंट है, और उसको रिफ्रेश करके फिर अपन नोटबुक में जाते हैं. ठीक है. सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी. सेम
सेम मार्केट, सेम प्रोडक्ट और बिजनेस, प्रोडक्ट बिजनेस दोनों वर्ड यूज करते हैं, ठीक है. सेकंड, दे फोकस ऑन फंक्शनल एफिशिएंसी, ओके. पैसा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेस, रिस्क लेस, सेफ्टी अप्रोच, मैं बोला अप्रोच कौन सा है, सेफ्टी, ओके. बिजनेस का रीडेफिनेशन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ओके. एक्सपेंशन में ये सब उल्टा आएगा ना, याद रखने का, एक्सपेंशन में सब रिवर्स है. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ओके. ये सेफ्टी अप्रोच के बाद आपका रीडेफिनेशन नहीं है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, द रिसोर्स विल बी फोकसिंग ऑन कोर कॉम्पिटेंसी, रिसोर्स विल बी फोकसिंग ऑन कोर कॉम्पिटेंसी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, जहां पर यहां पर देखा जाए इनका ग्रोथ है कि नहीं है, कौन सा ग्रोथ है, मॉडेस्ट ग्रोथ. आई होप क्लियर है मालिक. तो एक्सपेंशन में कौन सा ग्रोथ होता है, मॉडेस्ट. रैपिड से ज्यादा वर्ड आएगा मैमोथ ग्रोथ. मैमोथ मतलब सुने कभी वर्ड, हाथी का पहला वाला नाम. Elephant was having some different name in earlier ice age. I hope you were there in ice age. Hey, my God, you are not there. I was there. We were interacting. You are not aware. You forgot your initial memories, man. There was one mammoth who was having. I hope remember this. तो उसके एक्सपेंशन में वर्ड क्या होगा, मैमोथ. और यहां पर वर्ड क्या है, मॉडेस्ट. मॉडेस्ट मैमोथ, मॉडेस्ट मैमोथ. मैमोथ मतलब हाथी, मतलब इतना भयंकर ग्रोथ होता है एक्सपेंशन में. तो आई होप ये क्लियर. Second, why stability? Why you will suggest stability? 5 reasons. First, product life cycle, environment, okay, dynamic, relatively static, employee feel comfortable. तीसरा point clear. Market में there is a threat. So what is the threat? Expansion. And last point, recently we have done expansion. Let consolidate for the benefits. I hope clear Malik. ठीक है. दो तीन चीजें बिफोर स्टडिंग दिस, ओके, ये देखने के पहले मेरे को बताओ, क्या स्टेबिलिटी स्टडी इज डू नथिंग स्टडी? नो. वो क्या करते फिर स्टेबिलिटी में, करते क्या है, नए नए में कुछ नहीं करते. ऑब्जर्वेशन वर्ड नहीं है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, एनालिसिस, मॉनिटरिंग. एनालिसिस नहीं करते, एनालिसिस नहीं करते, मॉनिटरिंग. मॉनिटरिंग काय के लिए, एनी चेंजेस इन एनवायरमेंट, दैट इज मेनली फोकस ऑन स्टेबिलिटी. आई होप क्लियर मालिक. ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीन पे आओगे, एक बार देखो पहले, उसके बाद नोट्स में आना. फर्स्ट आई विल बी ऑन पेज 4.3. पहले समझ लो ये फॉर्मेट. 4.3 पे आ जाइए. ओके, ऑनलाइन पढ़ लो. क्लियर है मालिक? ओके, 4.3 पे. नहीं पेन को मैं बाद में बताता, पहले मैं एक बार स्ट्रक्चर सुनो. 1 मिनट स्क्रीन पे देखो. ओके, 4.2.1 मिल रहा है मालिक. कुछ भी हाईलाइट मत करो, बस देखो एक बार, मेरे को देखो. पंटर लोग सुनो, ये है स्टेबिलिटी का, ये पूरा स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है. सर क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट याद रखना है? नहीं, इसमें से आई विल बी हाईलाइटिंग यू. रिमेंबर दैट, ट्राई टू रिकॉल दैट, उतना ही कंटेंट. पर ये कब लिखना है? फॉर एवरी स्टेबिलिटी. ओके, जब ये आंसर स्टेबिलिटी आएगा तो स्टार्ट तो कुछ तो ज्ञान देना नहीं है ना, वो ज्ञान में इसमें से कंटेंट है. पर ये सब क्यों रखा हुआ है? एमसीक्यू. अदरवाइज एमसीक्यू नहीं होता तो ये सब वैसे ही कट जाता. ओके, आफ्टर दैट दिस क्वेश्चन कम्स. व्हाट इज दिस क्वेश्चन? Characteristics of stability. I hope you are aware. Now this will be a statement form answer. This is not a head point masala. What is the meaning of head point masala? Head point, then you are writing content. This is not characteristics written here. It will be a statement. So there are two types of answer in our syllabus. One will be statement form, one will be head point and content or masala. I will be frequently using word masala. So this question is about statement. Next you go on the next page, that will be called major reasons for stability. How many reasons we have discussed? 5. I hope you remember 5 point. This is also a statement form answer. Okay, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये ऐसे फॉर फैक्टर रहेगा. ओके, एंड उसके बाद एक कॉन्सेप्ट मिलेगा जिसमें अपन बोलेंगे, ओके, व्हाई डोंट स्टार्टअप फोकस ऑन स्टेबिलिटी. वी विल डिस्कस दैट वन बट लेटर ऑन. बट लास्ट पॉइंट रहेगा अपना डिस्कशन का. आई होप ये क्लियर है. ठीक है, वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेड, ब्लू एंड ब्लैक. Make it sure you understand. ये शायद I missed out with everybody. Please listen carefully. ये चीज को आप इंटरप्रिटेशन क्लियरली रखिए. Right now January exam is there and within a day or two you will be seeing the LDR sheets on Telegram channel of mine channel. विनोद सर के चैनल पे मैं शेयर करूंगा, प्रशांत सर के चैनल पे शेयर करूंगा. LDR means last day revision. यानी इंपॉर्टेंट क्या है फ्रॉम जनवरी पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मॉक टेस्ट पेपर 1 आ चुका है और आरटीपी आ चुका है, और मॉक टेस्ट पेपर 2 आएगा, बस वो अपडेट हो जाएगा. ओके, सर्टेन थिंग्स. दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट एलडीआर कम्स. एलडीआर विल कम फॉर एवरी अटेम्प्ट.
LDR will come for every atom. Example, for May atom also and November, September atom also LDR will come. But in for May atom, when LDR will come? In April. For September, when LDR will come? August. मतलब एक 20 दिन पहले, 20-25 दिन पहले. Sir, what is the meaning of LDR question? Based on my intuition, based on past paper, based on RTB, based on MTB, these are most likely question to come in examination. And आप इसका कंपैरिजन भी करना है तो जो आप देख लेना, ओके, द LDR शीट विच इज अपलोडेड फॉर सितंबर इज आल्सो अपलोडेड ऑन टेलीग्राम चैनल. अब कंपेयर करना है, मतलब ये फुकट के टाइम पास करना है तब करो. इफ योर आइटम इज इन मे, डोंट डू इट. ओके, इफ इट इज योर इन सितंबर, क्या है फिर काम ही क्या है. तो कंपैरिजन करने के लिए यू विल फाइंड आउट ऑफ 50 मार्क्स, अगर मैं एमसीक्यू अभी पकड़ रहा हूं तो ओके, यू विल कम टू नो ऑलमोस्ट 38 to 39 मार्क्स, 38 to 39 मार्क्स वाज फ्रॉम LDR. बट मेक इट श्योर, LDR के लिए एक डिस्क्लेमर इज वेरी क्लियर. इट इज बेस्ड ऑन माई जजमेंट, नॉट ICAI जजमेंट. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. तो अब 2 बार मैच हुआ, तीसरी बार भी अपन देखेंगे. जनवरी का LDR शेयर करेंगे अपन, एंड जनवरी का पेपर अपने सामने नहीं देखने वाले हैं, देख लेंगे, अपने को मैच मिलेगा. तो सर LDR जब दिया है तो व्हाट इज एन एजेंडा? द एजेंडा इज वेरी क्लियर. रटिफाई दैट पॉइंट्स, रटिफाई दैट क्वेश्चन. वो रेड हो, ओके, वो ब्लू हो, ब्लैक हो, एनीथिंग, रटिफाई. तो सर व्हाट इज एन इंटेंशन ऑफ रेड, ब्लू, ब्लैक? मेक इट श्योर रेड, ब्लू, ब्लैक का कंटेंट क्या है. इफ आई एम सेइंग दिस आंसर शुड बी रिटन इन रेड, इसका मतलब इसका आंसर याद रखना डिफिकल्ट होगा, कीवर्ड्स याद रखने डिफिकल्ट हो गए. मतलब अगर आप एक बार रीड करोगे ना, याद नहीं रहेगा मेरे भाई. इट विल नॉट बी इजी टू रिमेंबर. द रेड है ना, इट विल नॉट बी इजी टू रिमेंबर कंप्लीटली. ये ध्यान रखना, ये फ्लो वैसा है, इसीलिए अपन उसको रेड में लिखते हैं ताकि आप उस पर एफर्ट्स ज्यादा करो, उस पर टाइम ज्यादा डालो, रिवाइज अगेन. बिकॉज आपको लग रहा होगा, आप ट्राई करना, जो भी रेड वाले लिखाए होंगे ना, एक बार रीड मारो एंड ट्राई टू राइट इट आउट. एंड सेम लॉजिक, ओके, ब्लू का या ब्लैक का एक बार रीड मारो, ट्राई टू राइट. ओके, विल कम टू नो ब्लू एंड ब्लैक विल बी वेरी इजी टू राइट. रेड वाला विल नॉट बी इजी टू राइट बिकॉज ऑफ सम टर्मिनोलॉजी. सर आपने ये कैसे निकाला? अब ये मैं जब ओवर पीरियड में जब एक्सपीरियंस किया स्टूडेंट के साथ में, बेस्ड ऑन दैट हैड बीन टेकन आउट. तो रेड, ब्लू, ग्रीन का कॉन्सेप्ट क्या है? ओके, रेड आपने फुल रटना ही है, एज इट इज वर्ड रटिफाई करो, ट्राई टू रिमेंबर. आप मालूम है ना वो यू विल स्टडी इन 10th, हाँ भाई ये स्टेटमेंट. वैसे ब्लू वाला आंसर, ओके, कीवर्ड्स पे ध्यान रखो, आंसर अपने हिसाब से ड्राफ्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दैट विल बी लेमन टर्म इंग्लिश. एंड ब्लैक वाला पॉइंट, ओके, कोई टेंशन ही नहीं है, आप वैसे भी फिकोलॉजी करोगे तो इट विल बी रिलेवेंट. व्हेन आई एम सेइंग फिकोलॉजी मींस अब्बा डब्बा चब्बा नहीं, conceptual writing. If you will be able to do that writing conceptually, okay, no need to focus on keywords or something like that. So blue will be always focusing on keywords. Okay, the red will be always focusing on not keywords. Complete answer. I hope ये point clear है. Okay. सर सब बुक मिल गई एक्सेप्ट SM. माँ कसम. यार मैं तो बोला ओके सर, तो एक बार आप प्रेम ने कुछ नंबर दिया होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ, नंबर पे कम्युनिकेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक हो जाएगा. अभी जो लिख रहे हैं हम लोग ऑनलाइन पढ़ लोग, जिनमें बुक्स नहीं मिली होगी और हम लोग लिख रहे हैं, तो एक अलग से नोट पे लिख लीजिए नोटबुक में. ओके, फिर वो पेपर को फाड़िए और जब टेक्स्ट बुक आ जाएगी चिपका दीजिए. नोटबुक का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है. सर वापस लिख लेंगे ना, ठीक है, वेस्ट, मतलब पेन का कलर वेस्ट, पेन का वेस्ट, ये सब वेस्ट, पेपर वेस्ट, टाइम वाइंड है, हो गया ना, ठीक है ना, हो जाएगा मालिक, तोड़ मालिक. तो लेट्स फोकस ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट. ब्लू कलर पे यूज करिए आप, ये इजी आंसर है. कीवर्ड्स पे आपको फोकस करना है रादर देन स्टेटमेंट पूरा. ओके, सब लोग आ गए स्टेबिलिटी पे, एवरीबॉडी. अच्छा, मीम का मतलब क्या है? अच्छा, ये अगर आप देखोगे स्टेबिलिटी और ये अप्रोच में ना, आपको शार्क टैंक इंडिया का काफी कुछ मीम मिलेगा. जो शार्क टैंक इंडिया दिखता है उसको समझेगा, नहीं दिखता है तो कोई फर्क नहीं है. ओके, बिकॉज अगर आपने देखा होगा उसमें कौन कौन रोल प्ले करता है, तो उसमें भाई साहब ये है स्टेबिलिटी. ओके, अब ये भाई साहब बोल रहे हैं आप हमेशा ऐसे ही डिसीजन लेते हो कि लाइफ में, तो आप मेरे को बताइए, ओके, स्टेबिलिटी का कंटेक्स्ट किस पॉइंट से है? डू यू थिंक स्टेबिलिटी इज ऑलवेज वी यूज द स्टेबिलिटी? नो. Okay, it's only for a period. Remember this concept. Remember this concept. Never ever stability will be for lifelong. Okay, और मैं आपको ये बता रहा हूं, आप कितना उसको समझ रहे हो. In real life, stability will be always for bare minimum of 2 months. In 2 to 3 months, if we remain stable, my market share will go. Because competitor will not be playing मतलब ताली. Competitor को समझ में आ रहा है कि तुम कुछ नहीं कर रहे, तो that time competitor will do
बट स्ट्रैटेजी बताओ मेरे को, लॉजिक समझो. कंप्यूटर क्या करेगा? सपोज आई एम योर कंप्यूटर, आई एम हैविंग 70% मार्केट शेयर, यू आर माय कंप्यूटर, यू आर हैविंग 30% मार्केट शेयर. आई एम स्टेबल, आई एम नॉट डूइंग एनी एड, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट आई एम वाचिंग यू. ओके, नाउ टेल मी, विल यू सिट विथ 30% ओनली? तो व्हाट यू विल डू? एक्सपेंशन. पर एक्सपेंशन में कौन सा? मार्केट पेनिट्रेशन. नाउ टेल मी व्हाट यू विल गिव? यू विल गिव ऑफर. तुमको मालूम पड़ा अमित कुछ ऑफर नहीं दे रहा है, चलो हम ऑफर देते हैं. ओके, यू विल डू मोर एडवर्टाइजिंग. अब मेरे को बताओ, अगर मुझे मालूम पड़ा तुम ऑफर दे रहे हो एंड द ऑफर इज सो लाइकली दैट माय कस्टमर कैन शिफ्ट फ्रॉम मी टू यू, ओके, डू यू थिंक आई विल बी रिमेन स्टेबल और आई विल चेंज माय स्ट्रेटजी? दिस इज व्हाट हैपेंस विद स्टेबिलिटी एंड दिस कैन टेक प्लेस ओनली फॉर बेयर मिनिमम. मैं बोल रहा हूं मतलब ऐसे देखा जाए तो 1 महीना 2 महीना, दैट्स इट. ओके, नॉट मोर देन दैट यू कैन रिमेन स्टेबल बिकॉज द मार्केट इज स्टैटिक और डायनामिक. डायनामिक. कस्टमर को सस्ता जिधर मिलेगा उधर चला जाएगा. कस्टमर शिफ्ट होता है और आपको मालूम है ये चॉइसेस कैसी है. ओके, अमेजॉन में क्यों खरीदते हैं अपन मैक्सिमम टाइम? जो नीचे शॉप में भी मिल रहा होगा तो भी अमेजॉन में क्यों देखते हैं? अच्छा, कोई शॉप में शॉपिंग करने गए, यू डायरेक्टली शॉप इट आउट और यू चेक इट आउट ऑनलाइन प्राइस. क्यों ऐसा करते हैं ऑनलाइन प्राइस? फिर उसको बोलते भाई ऑनलाइन में देखने ये सस्ता मिल रहा है. ओके, तू दे रहा है इतने में तो दे, नहीं तो मैं ऑनलाइन से मंगाता. व्हाई? बिकॉज कस्टमर इज नाउ डायनामिक. तो टेक्निकली यू मतलब ये स्टेबल है कि नहीं? स्टेबल मतलब यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, विद रिस्पेक्ट टू मार्केट्स एंड अदर थिंग्स. लेकिन आप बोल रहे हो मैं डिस्काउंट देने चालू कर दिया. नाउ इट इज नॉट स्टेबिलिटी, इट इज एन एक्सपांशन ऑफ विच कॉन्सेप्ट? मार्केट पेनिट्रेशन. मैं अगर डिस्काउंट ऑफर देना चालू कर दिया तो क्या है? स्टेबिलिटी है क्या? मार्केट. अरे आप लोग को समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? पक्का ना? तो याद रखो, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या रहेगा मालूम है क्या? मैं स्ट्रैटेजी बना दूंगा पर सामने वाला क्या करेगा? क्या ये आइडेंटिफाई करना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है. इसलिए वो भी तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज करेगा. तो टेक्निकली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि एवरीबडी यूजिंग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसका? एग्जाम्पल, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? फ्रॉम डे वन लेक्चर. व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? मैनेजरल प्रोसेस ऑफ 5 stages. Okay, and why we are doing this 5 stages? To achieve competitive advantage. And I can achieve this competitive advantage if I am having core competency. Okay, if I am having core competency and I am remaining stable, okay, will you copy my core competency? What I told you, when you copy my core competency, I should be innovation and I should be on next version. This cannot be done only with stability, ना? तो stability is बहुत रेयरस्ट अप्रोच, आप याद रखना. लेकिन क्या सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है? टेक्निकली एग्जाम में इट हैज बीन केम ओनली वंस इन May 22. कब आया था? May 22. May 22 में एग्जाम में आ चुका है. बट आरटीपी नवंबर 23 एंड May 24 न्यू सिलेबस का May 24 उस टाइम पे भी आया है. तो ये क्वेश्चन 3 बार आया है. तो इसके बाजू में आप अपडेट कर दीजिए एक बार. स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इसमें, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी पेज नंबर क्या है? 4.3. तो ये है May 22 एंड और एक रहेगा आरटीपी नवंबर 23 एंड May 24 न्यू सिलेबस. ये था स्टेबिलिटी के ऊपर जनरलाइज. ओके, डू यू रिमेंबर मेजर रीजंस? हाउ मेनी रीजंस वर देयर फॉर स्टेबिलिटी? 5. कैन यू एक्सप्लेन वंस लास्ट टाइम? ओके, फर्स्ट लाइफ साइकिल, मैच्योरिटी, एनवायरमेंट रिलेटिवली स्टैटिक, थर्ड ओके कंफर्टेबल, फोर्थ पॉइंट एनवायरमेंट इज थ्रेट, अपॉर्चुनिटी इज थ्रेट फॉर मी, मतलब भाई एक्सपेंशन इज थ्रेट फॉर मी. एंड फिफ्थ पॉइंट, अब भी बहुत सारा एक्सपेंशन किया है, स्टेबल. सितंबर 24 का ये क्वेश्चन था 4 मार्क्स के लिए, तो याद रखना. ओके, ये तो हुआ सितंबर 24 इज ऑन मेजर रीजंस. 4.4 पेज पे आइए, इधर डालिए सितंबर 24. तो सर व्हेन आई एम राइटिंग दिस May 22 RTP, इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन होंगे किसके होंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन कॉन्सेप्ट पे. और अगर मेजर रीजन आया तो स्पेसिफिक क्वेश्चन बनेगा. मेजर रीजन आया तो स्पेसिफिक क्वेश्चन. ओके, तो टेक्निकली लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट. पहला पॉइंट हाईलाइट करने पे रहिए. ओके, और कुछ कीवर्ड्स मैं आपको अभी हाईलाइट कर रहा हूं. ओनली फ्रॉम विच पर्पस? MCQ. और एक 2 लाइन में आप बताऊंगा, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट वन. 2 लाइन मतलब 2-4 लाइन, मतलब 2 लाइन पकड़ के मत बैठो. Okay, that 2-4 lines you need to remember while writing the answer for stability. So first point, one of the important goal of business enterprise is stability strategy is to stabilize. It may be opted to safeguard its existing interest and strength, to pursue well established and tested objectives, to continue in the chosen business path,
to maintain operational efficiency on sustained basis, to consolidate commanding position already reached, and to optimize returns on resources committed in the business. अगर ये पैराग्राफ अगर आपने देखा, ये पैराग्राफ इज नथिंग बट वाई स्टेबिलिटी वाला आंसर जैसा, द सिमिलर पॉइंट, बट दैट इज नॉट एन आंसर. हाँ, दैट इज नॉट एन आंसर. आंसर अपन अलग लिख, मतलब आपको जो मैंने समझाया दैट फॉर्मेट विल बी दैट. अ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, ये आपने याद रखना चाहिए थियरी लिखते वक्त. स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इज परस्यूड बाय ए फर्म व्हेन it continue to serve in the same or similar markets and deal in same or similar products and services. Yesterday if you remember I told you same or similar ये word use किया हुआ इन्होंने, बट same and similar का मतलब मैं आपको समझा देता हूं. कल किसी ने तो पूछा था same और similar का context की, somebody has asked, okay, same and similar का, तो मैडम पूछ रहे थे, तो मैं same and similar को concept समझा देता हूं. सपोज आई एम इनटू ऑयल मैन्युफैक्चरिंग, मैं ऑयल मैन्युफैक्चर करता हूं, ऑयल है और ऑयल का बॉटल है, मानो मैं एक बॉटल, जब मैं एक बॉटल, एक प्रकार की बॉटल आपके लिए बना रहा हूं, ओके, दैट इज वन प्रोडक्ट, बट कैन दैट बॉटल हैव ए डिफरेंट पैकिंग साइज? दैट इज सिमिलर. दैट इज सिमिलर. ओके, दैट इज कॉल्ड सिमिलर कॉन्सेप्ट. तो सेम और सिमिलर. आई कैन डील ओनली इन वन साइज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल, आई कैन हैव ए मल्टीपल पैकेट साइज ऑफ ऑयल, दैट मे हैपन. तो इसके ऊपर अपन और क्लैरिटी ओके आज नहीं ले पाएंगे, मतलब आज अपन एक्सपेंशन का स्टार्ट करेंगे, बट कल तुम्हारा वाला लेक्चर मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्क कसम नेक्स्ट लेवल रहेगा. तो नीड टू बी फोकस्ड आउट वेरी क्लियरली. तो इसके ऊपर अभी ध्यान रखना, अभी जस्ट चिल रहो. तो अभी के लिए मैंने बोला ऑयल के पैकेट्स निकालना इज सिमिलर, ऑयल के पैकेट्स निकालना इज सिमिलर. ओके, तो ये भी स्टेबिलिटी में आता है. कल वाले कॉन्टेक्स्ट में अपन नेक्स्ट टाइम देखेंगे. This strategy is typical for those firms, okay, whose product have reached at the maturity stage or those who have sufficient market share but need to retain that. मिला क्या? मिला सेकंड पॉइंट? ये आपने रटना है when you are writing any theory. अभी तक और एक है, और दो लाइन आपको डालनी होगी, बट ये पॉइंट लिखना है. अब टेल मी टू राइट दिस पॉइंट, I hope you are under getting this point. To write this point, I don't think so you require any extraordinary brain का development. This is almost similar concept. तो ये पॉइंट के बाद अभी और क्या लिखना है वो ध्यान रखना. यहां पर ये लाइन पे आइए, ये लाइन ये हाईलाइट रखिए, जो ये वाला पॉइंट, ये आपको साथ में रखना है. तो टेक्निकली यहां से लेकर इतना विच इज बेस एंड ये, हेंस स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ डू नथिंग स्ट्रेटजी. डू नथिंग स्ट्रेटजी नहीं है. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना. और उसमें अगर आपको और एड ऑन करना रहा तो डू नथिंग क्यों नहीं है? बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग मॉनिटरिंग. तो आपको एड ऑन करना है तो कर सकते हो, नहीं किया तो भी चल जाएगा. फ्यू ऑफ द आरटीपीज यू विल नॉट फाइंड, मतलब जो दो आरटीपी है उसमें वो एड ऑन मतलब कंटेंट दिया ही नहीं है, बस इतना ही कंटेंट दिया उन्होंने बेसिक डिफरेंस समझाते वक्त. ये भी नहीं दिया है, ये तो मैं खुद ऐड करने बोल रहा हूं. तो अगर दोनों आरटीपी देखोगे, ओके, यू विल नॉट फाइंड द कंटेंट ऑफ दिस वन, बट आई विल सजेस्ट ये लाइक लिखना चाहिए आपने. Okay, they have remained updated and have a pace with dynamic volatile business to preserve that market share. Small organization may also follow stability strategy to consolidate their market position and prepare the launch of growth strategies. For deeper understanding of this strategy, let's discuss the characteristics. तो चालू करें characteristic मालिक. तो characteristic कितनी बार आया एग्जाम में? एक बार. कौन सा एग्जाम? May 22. यानी which syllabus, new or old? Old. And RTP में आपको दो बार मिल जाएगा. अब अगर मे आरटीपी देखोगे, मे 24 की आरटीपी, तो भी ये क्वेश्चन आया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी, पर मैंने आपको बताया हुआ है. क्या ये क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं? एक्सप्लेन स्टेबिलिटी स्टडी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. कैसे आते हैं? केस स्टडी आएगा और उसके अंदर नीचे होगा एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजी विच हैज बीन यूज्ड एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दो स्ट्रैटेजीज. ओके, तो कॉन्सेप्चुअली वैसे फ्लो में जाना होगा. अब मेरे को बताइए स्टार्ट कैसे करें. तो मेरे को बताओ पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है याद रखने का? कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट पॉइंट सेम वर्ड याद रखना, सेम पर स्टेटमेंट अपन लिखते जा रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट, अ फर्म ऑप्टिंग, ब्लू पेन, अ फर्म ऑप्टिंग फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी stays with क्या वर्ड? सेम बिजनेस स्लैश और एक वर्ड क्या? प्रोडक्ट
and same market. Same market. Same market. One line you will add. They maintain same level of efforts. They maintain same level of efforts. Second, what is second point better? They focus on improving functional efficiency. They focus on improving. What is the meaning of functional? ओफू बताओगे functional का? Functional means what? नहीं, वो तो लर्निंग इफेक्ट यूज करते हैं उसमें, एफिशिएंसी के लिए वो है. फंक्शनल मींस, फंक्शनल एफिशिएंसी मींस व्हाट एफिशिएंसी? नहीं, डिपार्टमेंट. फंक्शनल व्हेन आई से फंक्शनल स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल मींस डिपार्टमेंट ना. तो डिपार्टमेंट को एफिशिएंट बनाते हैं ये लोग. तो रिमेंबर दैट. ओके, फंक्शनल. ओफू मतलब ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. क्या एग्जाम में ये लिखना है? नहीं. ओके, याद रखना. They focus on improving functional efficiency. EFF, ICIENCIES, efficiencies. They focus on improving functional efficiencies. थर्ड, क्या नहीं करते, मतलब क्या था? तो यहां पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट लगेगा या नहीं लगेगा? दे रिक्वायर लेस क्या? फ्रेश इन्वेस्टमेंट. वैसे ये किसके कंटेक्स्ट में कंपेयर कर रहे हैं? एक्सपांशन. अब आगे और कुछ कम है. रिस्क. द रिस्क इन्वॉल्व इन दिस स्ट्रैटेजी. द रिस्क इन्वॉल्व इन दिस स्ट्रैटेजी इज लेस. अब रिस्क लेस है तो कुछ तो और अच्छा है. If risk is less, what is better? Safety. याद आया ना? रिस्क कम है तो सेफ्टी. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ सेफ स्ट्रैटेजी. इट इज अ सेफ स्ट्रैटेजी दैट मेंटेन. एक वर्ड आपके पास आएगा, स्टेटस क्वो. स्टेटस क्वो, QUO. What is meaning of status quo? As it is. Status quo मतलब as it is. Status quo. डन मलिक? ठीक है. छठा पॉइंट आप बताइए. रीडेफिनेशन. इसमें रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस है कि नहीं है? इट डज नॉट इन्वॉल्व क्या? रीडेफिनेशन. किसका? बिजनेस का. स्पेलिंग का ध्यान रखना. REDEFINITION. रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस. स्टेटस को की स्पेलिंग क्या लिखी? STATUSQUO. स्टेटस को का मतलब एज इट इज. अब जो ऑर्गेनाइजेशन ये स्ट्रेटजी यूज करते हैं, उनका मेन फोकस किस पे है? ऐसे नहीं लिखोगे. मैंने क्या समझा था वर्ड?
नहीं, मॉडरेट वाला लास्ट है, इसका नेक्स्ट लास्ट आंसर है वो, हाँ, रिसोर्सेस. Such organization who is using this strategy, they concentrate their resources. To focus on core competency. The 7th point, the organizations using such strategy concentrate on its resources. Which lead to building of, ये lead है, LEAD, to building of CC मतलब core competency. What is the meaning of core competency? Uniqueness with others. What is the meaning of competency? Skill sets. Competency मतलब मेरे पास skill sets है, और अगर मेरे पास स्किल सेट ऐसा है जो सबसे यूनिक है, उसको हम नाम क्या देते हैं? कोर कॉम्पिटेंसी. और कोर कॉम्पिटेंसी आ गई तो आपको क्या आएगा? व्हाट यू विल गेट? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट एवरीवेयर. ओके, ये भूलना मत. ये मैंने ये कॉन्सेप्ट इधर उधर के लेके मैंने इसलिए समझा बिकॉज दिस इज ऑलवेज विल बी डिस्कस्ड. सर अब मेरे को कोर कॉम्पिटेंसी अच्छे से समझना है तो चैप्टर 3 में, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अच्छे से समझना है तो चैप्टर 3 में, इसके क्वेश्चन समझना है तो चैप्टर 3 में. राइट नाउ आई एम नॉट इनटू एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चन आंसर, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के क्वेश्चन आंसर. विल डिस्कस इन दैट इन विच चैप्टर? चैप्टर 3. नॉट राइट नाउ. इस साल में नहीं पढ़ेंगे हम, अगले साल पढ़ेंगे वो, एक साल के बाद, मां कसम. ओके, मींस दैट विल बी कमिंग इन जनवरी. दिस मंथ का स्ट्रैटेजीज इज चैप्टर 4, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. ये आपका कॉन्सेप्ट होगा. और साथ में 3B, माना 3B याद है ना, वो कॉन्टेक्स्ट में अपना सीक्वेंस है. तो टेक्निकली अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट आंसर दो. ओके, द फर्म with modest growth strategy, the firm with modest growth strategy. मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रही है तो बताना, मतलब स्पेलिंग वेलिंग. हाँ नहीं, राइटिंग बहुत अच्छी है, देखो मतलब और बहुत अच्छी भी निकल सकता, बट इट डजंट मेक ए, मतलब देन इट विल हैपन ना, यू विल थिंक यार ये क्या आदमी है यार, इसको सब कुछ आता है, इसकी राइटिंग भी इतनी अच्छी है, मतलब क्या समझ रहा है. तो तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में ऐसे आपको इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स ना लगे. दैट्स माय कंप्लीट एजेंडा एंड दैट्स आई विल फुलफिल. बस द फर्म विथ मॉडेस्ट ग्रोथ स्ट्रैटेजी, मॉडेस्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी नहीं, ऑब्जेक्टिव, फोकस ऑन दिस स्ट्रैटेजी. आई होप दिस आंसर इज वेरी क्लियर एट योर एंड. तो आप अपने एंड पे हाईलाइट कर लीजिए कीवर्ड, जो आपको लगे कीवर्ड प्लीज डू हाईलाइट फटाफट. When revising, we'll not revise a complete statement. That statement need to be learned at your end. Okay, while revising the chapter again and again, when I'm doing cumulative revision, I'll be recalling with keywords. The first keyword will be, statement will be same. Second will be functional efficiency. Third will be fresh investment. वो आप word याद रखो, word से अपने को concept बैठ जाता है. Okay, after fresh investment, risk. After risk, safety. Safety के बाद redefinition. And after that सबसे important point CC, core competency. और resource भी याद रख लो आपके एंड पे. मैं रिवाइज करते वक्त CC. And the last answer will be modest growth. एम्प्लॉय कंफर्टेबल ना, वो किस में आएगा बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स में या वाई स्टेबिलिटी? वाई. कैरेक्टरिस्टिक्स में ये साथ ही है, कैरेक्टरिस्टिक्स में ये साथ रहेंगे. ओके, वाई स्टेबिलिटी विल बी हैविंग ए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड ऑलरेडी इन सितंबर. तो जब अपन सितंबर 24 का पेपर देखोगे, ओके, तब आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आ गया. तो 5 पॉइंट्स फटाफट अपडेट कर दीजिए. पहला पॉइंट क्या लिखोगे? पहला पॉइंट,
The product has reached, blue color, हाँ blue color. पहला पॉइंट है, the product has reached. The product has reached. अच्छा, प्लीज मेरे को ये बता दो. I hope everybody is clear now that if product is in growth phase also I can use stability for some period. So you should not link only on this first point. First point is one of the option. Okay, first point is one of the option, but the next four options are there which are working differently. The first point, product has reached which point? Maturity stage. Maturity stage of, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं पीएलसी. पीएलसी का फुल फॉर्म प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. पीएलसी मींस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. एग्जाम में आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखना. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. डन पंडर. पीएलसी फुल फॉर्म प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. अरे मैडम पेन बदल दीजिए, आपका आधे टाइम से पेन नहीं है, दूसरा पेन. ओके, पेन देना भाई, किसी पेन है नहीं एक्स्ट्रा पेन. अरे प्लीज असिस्ट यार, दे दे. थैंक्स बड़ी, थैंक्स बड़ी, एहसान रहेगा. ठीक है, अब लिख, एक बार देख लो, चेक कर लो, नहीं तो वापस मालूम पड़ा उसने भी पेन दिया, मां कसम. तो फर्स्ट पॉइंट, पीएलसी का फुल फॉर्म प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. सेकंड पॉइंट, हेल्प मी आउट. सेकंड पॉइंट क्या है? एनवायरमेंट स्टेबल. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑप्टेड व्हेन. इट इज ऑप्टेड व्हेन environment in which organization is operating is stable लिखोगे या relatively stable लिखोगे? relatively. स्टेबल की जगह और एक दूसरा वर्ड कौन सा आ सकता है? स्टैटिक. तो आपको जो दोनों वर्ड चलेंगे ना मालिक, स्टेबल, स्टैटिक, दोनों मत लिखो, दोनों में से कोई भी एक जिसको आप एडेप्टेड हो वो लिखो. इट इज ऑप्टेड व्हेन एनवायरमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग इज रिलेटिवली स्टेबल. थर्ड पॉइंट वेरी इजी. थर्ड पॉइंट क्या? ये एम्प्लॉइज. द स्टाफ फील कंफर्टेबल. द स्टाफ feels comfortable with, ऊपर का एक वर्ड इफ यू रिमेंबर, स्टेटस को. as it involves less changes and less risk. The staff feel comfortable with status quo as it involves less changes and less risk. Fourth point, what is the threat? Expansion. Next point, where it is not advisable to expand. Where it is not advisable to expand as it is threat. Where it is not advisable to expand as it is threat. And last, बहुत सारा क्या कर लिया? Expansion. तो नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर विच एक्सपांशन, छोटा मोटा या रैपिड? आफ्टर रैपिड एक्सपांशन. फर्म वांट टू, क्या करना चाहता है फर्म? कंसोलिडेट. फर्म वांट टू कंसोलिडेट. Consolidate itself.
firm want to consolidate itself. क्या स्टार्टअप स्टेबिलिटी अप्रोच यूज कर सकते हैं? अगर स्टार्टअप ने स्टेबिलिटी अप्रोच यूज किया, ओके, स्टार्टअप बिकम्स एंड अप. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. तो स्टार्टअप शुड नेवर यूज स्टेबिलिटी. स्टार्टअप का अप्रोच हमेशा क्या होना चाहिए? एक्सपांशन. आई होप ये पॉइंट क्लियर है. पक्का? ये पैराग्राफ आप पढ़ के खत्म करो. व्हाई डोंट स्टार्टअप एम्स फॉर स्टेबिलिटी. पढ़ के खत्म करने का, कुछ हाईलाइट वाइलाइट नहीं करने का. तेरे को मन को लगे वो करने का फिर हाईलाइट. नेक्स्ट पेज वाला. इसका मतलब क्या है? नेसेंट स्टेज ऑफ ऑपरेशन, स्टार्टिंग स्टेज. स्टार्टिंग स्टेज. एवरीबडी क्लियर? डन मालिक? तो इन शॉर्ट एकदम सिंपल आंसर है. एमसीक्यू आता है. स्टार्टअप शुड फोकस ऑन स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट. पक्का ना? रिट्रेंचमेंट. और स्टेबिलिटी क्यों नहीं करना चाहिए? रीजन सिंपल है. अगर स्टेबिलिटी किया तो उतना जितना शेयर है उनके पास उस पर टिके रहेंगे. दे विल नेवर एवर ग्रो. तो स्टेबिलिटी शुड बी डन बाय होम पर्सन. तो अगर मैंने कभी पूछा व्हाई स्टेबिलिटी या हु शुड परफॉर्म स्टेबिलिटी, द आंसर विल बी दिस 5 पॉइंट्स. एंड आई होप यू हैव हाइलाइटेड द कीवर्ड. व्हाट इज द कीवर्ड? ओके, धीरे धीरे अपन एक बार मतलब एक 4-5 lectures more goes into it. You are into writing process, you will come to know whenever we are writing the answer, whichever keywords I am repeating again and again need to be highlighted. So first point highlighting maturity, second highlighting stable. Okay, is everybody clear now? Okay, after the stable, after that staff feels. Staff feel, बस इससे याद आ जाता है पूरा. Next point, expansion is threat, and last point is consolidate, which can be remembered easily. Sir, status quo means what? Abhinav, status quo means what? As it is. Example, we are not doing anything new. That is called status quo. That is called status quo. Remain the status quo. That is called a concept of remaining as it is. I hope the things are clear at your end. ठीक है. 2 minutes more. Listen carefully. When we say stability, we have done with stability. But when we focus on expansion, the things will completely different what we discuss in stability. My question, in expansion, fresh investment required or not required? छोटा मोटा यार heavy. Risk is safety या less safety? Less safety वाला concept. Okay, redefinition of business is involved or not involved? Involved. Okay, stability का ये क्या है? Opposite. Stability का क्या है? Opposite. Okay, and मेरे को बताओ expansion में कितने options है? नाम? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन. एवरीबडी हियर समझ याद आया ये? लेट्स क्रिएट द स्ट्रीम. दैट इज द लास्ट पॉइंट फॉर द डे. लिसन केयरफुली. एक्सपांशन आर ऑफ 2 types. एक्सपांशन ऑफ, अरे सर मां कसम 4 है. अरे सर नीदर 2 types. Okay, please understand. One is internal expansion strategy. One is external expansion strategy. One is internal. One is external. आराम से. One is internal. One is external. External बाद में देखते हैं. Internal, there are 2 strategies. One is intensification. One is intensification. One is diversification. अब change हो रहा है आंसर. Okay, so first of all, how many types of expansion are there? 2. One is internal growth strategies, external growth strategies. आवाज नहीं आ रही है. Internal growth strategies, external growth strategy. Internal growth strategies will focus on 2 things. Intensification, intensify, and one is diversify. Intensify, diversify. Intensify, diversify. Intensification, diversification. Once again, intensification. INTENSIFICATION. Intensification, intensification, diversification. Clear? Intensification, you are already aware of 3 points. So what are the 3 points? Market penetration,
मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. डाइवर्सिफिकेशन अलग हो गया. समझ में आया? तो अगर मैंने 3 स्ट्रेटजी यूज की जिसमें ओके आई फोकस ऑन समथिंग इज एग्जिस्टिंग, देन द स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इंटेंसिफाई. लेकिन अगर दोनों नए हैं, डाइवर्सिफाई. ओके आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट मालिक. ओके सो इंटेंसिफिकेशन, हाउ मेनी स्ट्रेटजीज आर देयर? 3. नाम: मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ओके एंड लास्ट विल बी डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन अभी नाम याद रख लो, बाकी डिस्कशन बाद में आएगा. वन विल बी कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्सेंट्रिक विच इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक, एंड वन इज कॉन्ग्लोमरेट. क्या बोलते हैं? कॉन्ग्लोमरेट. रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन. ओके आई एम इनटू टीचिंग, आई एम स्टार्टिंग लाइब्रेरी, रिलेटेड. ओके बाकी किस में आता है वो छोड़ो, पर रिलेटेड समझ में आ रहा है. ओके आई एम इनटू द बिजनेस ऑफ क्लासेस एंड आई एम स्टार्टिंग पावड़ा. वड़ा पाव तुम्हारा हिस्सा. हम मुंबई के लैंग्वेज में पावड़ा बोलते हैं हम, पर वड़ा पाव यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट वड़ा पाव ना. वड़ा पाव बिजनेस, ईटरी. ओके तो अब मेरे को बताओ, टीचिंग बिजनेस इज गोइंग ऑन ईटरी बिजनेस, रिलेटेड और अनरिलेटेड? अनरिलेटेड. आप बोलोगे नहीं ना रिलेटेड है ना, स्टूडेंट तो खा रहा है ना, वो तो फिर पूरी जिंदगी में फिर तो हर चीज कुछ भी चालू करो तो रिलेटेड ही होगा. बिजनेस के साथ रिलेटेड है क्या? नहीं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्लोमरेट. तो आंसर बताओ सबसे पहला, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन और ग्रोथ स्टडीज आर देयर? 2. इंटरनल, एक्सटर्नल. इंटरनल में 2. इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन. इंटेंसिफिकेशन में 3. यू आर ऑलरेडी मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. डाइवर्सिफिकेशन में 2. कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट. कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट. आई होप क्लियर है मालिक. एंड इधर वाला लास्ट कौन सा था? नहीं ये इंटरनल के बाद एक्सटर्नल में 2. एक है मर्जर्स. मर्जर्स एंड एक्विजिशन सुना है कभी? मर्जर एग्जांपल, ए लिमिटेड इज मर्जिंग विथ टू बिकम सी लिमिटेड. तो मर्जर में दोनों का अस्तित्व चेंज, बोथ आइडेंटिटी चेंज एंड न्यू आइडेंटिटी कम्स इनटू पिक्चर. दैट इज कॉल्ड मर्जर. एंड वन इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक अलायंस. वन इज कॉल्ड V-Smart and Expert is nothing but strategic alliance. Okay, strategic alliance. What is meaning of alliance? दोनों का अस्तित्व इंडिविजुअल अभी भी है. Expert is expert, V-Smart is V-Smart. V-Smart केस में जो ब्लैंक पोजीशन है वो एक्सपर्ट ने फिल की. एक्सपर्ट के पास जो ब्लैंक पोजीशन है V-Smart ने फिल की. जो दोनों के पास उतने इंडिविजुअली है वो दोनों वैसे चला रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक alliance. Best example in India, one of the best example of strategic alliance is Toyota and Suzuki. अगर आपको मालूम है क्या टोयोटो की हाईराइडर है, सुजुकी कौन सी है? ग्रैंड विटारा. दोनों सेम है. टोयोटो का हाइब्रिड, टोयोटो का वर्जन है. टोयोटो इज वेरी गुड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर हाइब्रिड. 2010 हाइब्रिड वाज देयर. 2014 में मैंने पहली बार गाड़ी परचेज की हाइब्रिड वाला कैमरी, 2010 में है. सुजुकी के पास इतना R&D नहीं है, पर सुजुकी के पास इंडिया में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन. तो टोयोटो ने बोला तू मुझे तेरा डिस्ट्रीब्यूशन दे, आई विल गिव माई टेक्नोलॉजी. And Suzuki बोल, okay, you give me technology and we'll share distribution. This is called, is this merger? ना merger होता तो क्या होता था? Okay, Suzuki Toyota become Tsutovu. But I hope you understood the concept. So last time external strategy कितने प्रकार की? 2. 1 mergers and acquisitions and one will be strategic alliance. I hope structure clear है. See you tomorrow. Asala Visa. Take care Malik. तो ऑनलाइन पढ़ लोग, आई होप थिंग्स आर क्लियर मालिक. मर्जर हीरो होंडा, यस बड़ी मर्ज करेंगे ना अपन, तो मर्जर वर्जर बहुत सारा करेंगे. रिकॉर्डिंग बंद कर, 2 मिनट स्ट्रीमिंग रहने दे. एनी डाउट? ऑनलाइन पढ़ लोग. हितेश, क्रिश, अभिनव, सत्यम, विपुल. कल क्लास है मालिक मेहर, कल क्लास है. सारे मतलब हाँ बस हाँ. अब मैं ऑडिट नहीं मेरा, नहीं ऑडिट में अपने पास डेट्स है ना, मतलब तोड़ मालिक.
ऑडिट का लॉजिक अपने इसमें सिंपल है, एसएम खत्म,